توکلتُ علیک یا رب العالمین۔ آج ایک سوال ہے جو جناب اسرار احمد صاحب کا ایک فوٹیج مجھے بھیجا ہے اور انتہائی لجاجت کے ساتھ اس کا جواب طلب کیا۔ سب سے پہلے میں یہ گوشہ گزار کر دوں، آپ کی نظر میں میرا مقام وہ ہو سکتا ہے ایک بڑے کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے ہمارے درمیان میں، لیکن اب کیونکہ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اس لیے مجھے تھوڑا سا اظہار خیال کرنے کا موقع دیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مقام ہماری اسلامی دنیا میں ایک بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ وہ ان کے کسی بیان پر میری بات کو تنقید نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ ناگوار گزرے گا، اور میں بھی ڈاکٹر صاحب کی اتنی عزت کرتا ہوں، اس بات پر مجھے ہمیشہ فخر رہے گا کہ آپ جب اسٹاک ہوم میں تشریف لائے تو مجھے کچھ بہت قیمتی اور اعلیٰ معیار کی کتب عطا فرمائی، جن سے مجھے بہت رہنمائی اور استفادہ ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ میرے لیے اسی طرح سے مشعل راہ رہیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کا بیان القرآن انتہائی وضاحت اور صراحت کے ساتھ آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اور ان اساتذہ اور اکابرین کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے۔ وہ معیار ہمارے لیے قابل تقلید تو ہوتا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ حجت نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ کوئی حرکت کریں یہ سوچ کر کہ جی ہمارے استاد جی بھی ایسے ہی کرتے ہیں میں بھی ویسے ہی کروں، تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہے وہاں بندے کی اطاعت نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری کہ ان چیزوں پر آپ تقلید کریں جن کا تعلق سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، اور وہ خواہ آپ کو استاد میں نظر آئیں یا کسی بزرگ میں نظر آئیں، اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ علم ہماری میراث ہے، اس سے متعلق وہ احادیث بہت مشہور ہیں جو ہر ایک کی زبان پر رہتی ہیں کہ علم مسلمان کا کھویا ہوا خزانہ ہے، کہاں سے ملے تمہارا۔ اور دوسرا ایک علم مسلمان کا کھویا ہوا اونٹ ہے، کچھ اس طرح سے مفہوم ہے ان دونوں احادیث کے۔ تو جہاں سے رغبت اسی طرف دلائی گئی ہے کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے اس کو اختیار کر لیں، لیکن انگریزی میں جسے کہتے ہیں نا I religiously follow that trend، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ If you really religiously follow any trend then it has to be from Quran and Sunnah, not from any personality which you personally like۔ اب آئیے اس طرف جس چیز کے لیے مجھے تبصرے کے لیے کہا گیا ہے، میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ کوئی میری اس بات کو آپ پر تنقید محسوس نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب کی میں بہت عزت اور بہت احترام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقتاً میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میں نے کیا کہا ہے۔ تو پہلے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اس ان لوگوں کے لیے جو بعد میں اسے سنیں تو اس میں اس ریکارڈنگ کو بھی شامل کر لیں تاکہ میری بات کی وضاحت اور سوال اور جواب دونوں چیزیں سامنے آ جائیں۔ اب دیکھیے، آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً ایک صدی سے نیشن اسٹیٹ وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا۔ وطن زندہ باد، یہ وطن پرستی ہے۔ اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے، ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے، اس کا جھنڈا سلامی دو۔ یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے،
जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन। खुदा परस्ती, ये वतन की लकीर से तुम और हो गया, मैं और हो गया। लकीर इंसानियत मुनकसिम, जो तुम्हारे वतन के लिए ठीक है वो तुम करोगे चाहे वो अखलाकन गलत, और जो मेरे वतन के लिए ठीक है वो मैं करूंगा चाहे अखलाकन गलत। ये कौन सा दीन है जहां तो वतन तुम्हारा माबूद बन गया। पाकिस्तान में बड़ा शोर उठा था जब मैंने कहा था कि झंडे को सलामी देना शिर्क है और चलाने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क है। और मैं कभी भी तकरीबात में जाता हूं, इकबाल डे हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मैं उन तकरीबात का मुकर्रिर नहीं हूं, लेकिन जब बहुत जोर देते चला जाता हूं। लेकिन वहां तराना पड़ा जाता मैं बैठा रहता हूं, मैं खड़ा नहीं होता। और उस पर चेबेगोइयां होती हैं अखबारात के अंदर कि मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हम्द हो रही है वतन की। ये क्या है? आज के दौर का बदतरीन शिर्क, शिर्क फिल मोहब्बत। दो तीन बातें डायरेक्ट पहले अलहदा कर दी। उन्होंने कहा झंडे को सलूट शिर्क है, तराना मुल्क की हमद है। जब तराना पढ़ा जाता है और जब सब लोग खड़े होते हैं तो वो मुल्क की नमाज है, लिहाजा मैं बैठा रहता हूँ। और उन्होंने इस बात का इजहार करते हुए ये भी बता दिया कि लोगों में इस मामले में कीमा गोइयां होती हैं। बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं है। हजरत इकबाल का शेर जिसका उन्होंने हवाला दिया, मेरा ख्याल है वो इबलीस की मजलिस शोरा से है, जिसमें इस ख्याल का इजहार किया गया है कि इन नए बुतों में जो सबसे बड़ा बुत है वो कौमियत का है। जहां हम एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब के मुसलमानों के लिए एक अलहदा ममलिकत होनी चाहिए, और वहीं उसकी मोहब्बत एक नए किस्म के बुत की पूजा है या एक नए किस्म के बुत की तामीर है। तो इन दो चीजों को पहले आप सामने रख लें। इसरार साहब से बात बाद में होगी, क्योंकि उन्होंने उसी का हवाला दिया है। तो पहले हम उस बात को समझ लें कि इकबाल के ख्याल में ये तजाद क्या वाकई तजाद है? कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। इकबाल इससे पहले ये बात कह चुके थे। बाइबल का एक हवाला मैं पहले भी दे चुका हूँ, इस दफा दोबारा देना चाहूंगा कि आई एम दी जेलस गॉड, मैं एक हासिद खुदा हूँ। और वहाँ दी लगा हुआ है तो मैं बहुत ही या मैं ही और जोर देकर, यानी वन एंड दी ओनली। तो अगर कोई हासिद है तो मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो मैं सबसे बड़ा हासिद, और मैं हासिद खुदा हूँ, हासिद इला हूँ। और ये उसे जेब देता है इसलिए कि वो ही बरहक है, वो ही सच्चा है। तो उसकी जगह किसी और को क्रेडिट दिया जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है, बेइंसाफी है। इसीलिए इंसाफ पर इतनी मैं तवज्जो देता हूँ और इतना जोर देता हूँ कि सबसे बड़ा इंसाफ तो यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका असली तर्जुमा ये है कि तमाम हम्द सना जो है अल्लाह ही को सजावार है। इस्लामी कानून है कि 100 मुजरिम छूट जाएं, 100 गुनाहगारों को छोड़ दो, किसी एक बेगुनाह को सजा ना दे दो। तो गुनाहगार को छोड़ देना या 100 को दरगुजर कर देना इतनी बड़ी बुराई नहीं होगी जितना बड़ा जुल्म इस बात पर होगा कि किसी को तुम नाहक सजा दे दो। तो किसी चीज की तारीफ अगर की जाए, तमाम तारीफें अल्लाह ही को सजावार हैं, यानी वही इन तारीफों का जिम्मेदार है, तमाम अच्छाइयों का जिम्मेदार भी वही है। तो एक इल्जाम की तरह से भी ये क्रेडिट उसी को जाता है। इसलिए छोटे से छोटे मकाम पर भी हमें इंसाफ करना है, क्योंकि सबसे बड़ा इंसाफ ये है कायनात की हर शय का क्रेडिट उसके असली खालिक को ही दिया जाए, और वो अल्लाह तबारक ताला की ज़ाते अक़दस है। सब मोहब्बतों का हकदार वही है, सब परिस्तिशों का हकदार भी वही है, सब इबादत का हकदार भी वही है। तो हमें इस तरह से बताया गया है कि अगर हम किसी शय की तारीफ करें तो वहाँ भी उसकी ज़ाते अक़दस को मलूज़ खातिर रखें कि सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस किस्म के अल्फाज अदा करें, ताकि हमारी उस तारीफ के साथ साथ ये बात भी वाज़ेह होती चली जाए कि असल क्रेडिट तो उसी का है। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। अब देखिए कि इकबाल जो हैं वो हमें
ساتھ ہی ساتھ اس بات کو وارن کر رہے ہیں کہ ایک علیحدہ ملک بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس اسلامی قلعے میں محفوظ کر کے دروازے بند کر لیں اور یہ کہیں کہ بھئی ہم ہی استو بس یہی ہے اور یہی ہے، یا ہم سے پہلے کچھ اسلام میں ایسے مذاہب، ایسے مکتبہ فکر، سیکٹ رہے ہیں جو ایک علاقے میں محدود ہو گئے اور باہر کی دنیا سے انہوں نے اپنا رابطہ بالکل ختم کر دیا آلموسٹ، اور آج اس کے کانسیکوینسز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ مین اسٹریم مسلمانوں سے ان کے عقائد، ان کی تاریخ، ان کے معاملات کس حد تک جدا گانا ہیں۔ تو بھائی لکم دینکم ولی دین، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اگر آپ صحیح ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ میرے دل میں اس سچائی کی پیروی کے لیے راہ ہموار کرے، اور اگر ہم لوگ مین اسٹریم جسے کہتے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں تو اللہ آپ کے دل کو بھی روشنی عطا فرمائے۔ بہرحال بیک ٹو دی سبجیکٹ، اقبال یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا وجود ایک نئے آئسولیٹڈ اسلام کا گڑھ بن جائے، بلکہ یہاں وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی کرتے تھے، اور شکوہ میں تو آپ نے اس بات کو برملا اس کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ بنی نوع انسان عمومی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو اقبال سے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے تخیل کے ساتھ ان کا ایک ایسا کنسیپٹ ہو سکتا ہے کہ ہم صرف پاکستان اور بس پاکستان کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کریں، بلکہ وہ امت واحدہ سے ہم سب کو منسلک کرنا ان کا اولین کنسیپٹ تھا۔ تو وہ ہمیں اپنے اس شعر میں وارن کرتے ہیں کہ ہم وطن کی محبت میں ایسے نہ ہو جائیں، آئسولیشن کا شکار نہ ہو جائیں، اور امت کی بھلائی کے بجائے اس ہاتھے میں، وطن کے ہاتھے میں جو لوگ ہیں بس اسی کے ہو کے رہ جائیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تاریخ میں ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، وہ یقیناً حضرت اقبال کی نظر میں وہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ وہ اندلس کے مسلمان ہوں، وہ مراکش کے مسلمان ہوں، کہیں کے بھی ہوں، اقبال کے دل میں ان سب کے لیے درد اور محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ اب آئیے ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرف، وہ اس کو انتہائی حساسیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس اقبال کے اس پیغام کو ان کے عمومی پیغام سے ہٹا کر بس اس جگہ ان کی نظر ہے، اور اسے انہوں نے انتہائی شدت سے محسوس کیا۔ یہ ان کا مقام ہے، ان کا معیار ہے، اور اسرار صاحب اس میں اکیلے نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ میں ہمارے اکابرین میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا معیار اپنی ذات کے لیے بہت بلند رہا ہے۔ جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے گئیں کہ جی یہ بہت شکر کھاتا ہے، بہت میٹھا کھاتا ہے، تو اس کو ذرا کچھ نصیحت فرمائیں۔ کہ بزرگ ہے، اللہ پاک نے ان کی نصیحت میں ایک تاثیر عطا کی ہے، تو یقیناً میرا بچہ اگر یہ سمجھا دیں گے تو سمجھ جائے گا، اور ساتھ دعا بھی کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کل لانا۔ دوسرے دن خاتون گئیں، انہوں نے کہا کہ بھئی تم کل لے کر آؤ۔ اس طرح سے کرتے کرتے 3 دن ہو گئے، اور پھر چوتھے دن جب وہ خاتون پہنچی ان کے پاس تو انہوں نے اس بچے کو سمجھایا کہ بیٹا زیادہ میٹھا کھانے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو خاتون نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ بات تو آپ پہلے دن بھی کہہ سکتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا پہلے دن میں خود شکر کھاتا تھا، دوسرے دن تک میں نے شکر چھوڑی نہیں تھی، اور اب الحمدللہ جب میں نے شکر کھانا چھوڑ دی ہے تب میں اس بچے کو نصیحت کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اس واقعے کو حدیث تک کا درجہ دیا گیا ہے۔ میں نے خود سنا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایک حدیث ہے، جبکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کا اختیاری فیصلہ ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پیراللی آپ کی سوچ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی شکل آتی جا رہی ہوگی کہ ان بزرگ نے اپنے لیے یہ سٹینڈرڈ متعین کیا کہ میں اگر کسی کو نصیحت کروں گا تو پہلے اس پر خود عمل کروں گا، پھر کسی سے کہوں گا۔ اقبال کا ایک شعر پھر یاد آتا ہے، بے عمل تو تھے ہی کہ جوان دین سے بدظن بھی ہوئے۔ لوگوں نے اس واقعے کو حدیث کا درجہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے یہ استدلال لیا کہ آپ پہلے خود کریں بعد میں دوسروں کو بتائیں، کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ اسلام میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتانے سے پہلے خود کریں، نہیں۔ بلغ الانی نہ کانا آیا، لوگوں کو بتاؤ خواہ ایک جملہ کیوں نہ ہو، کہ لوگوں سے کہو اے اہل کتاب آؤ اس چیز کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام ذات حیات کی تعلیم عطا فرمائی، باپ کا احترام،
शौहर का एहतराम, बीवी से प्यार और मोहब्बत, खवातीन के अहकामात। तो अगर इस म्यार को आप वहां पर ला के रखें तो आपको पता चलेगा कि आप इंतहाई गलती पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को देखा ही नहीं, लेकिन वालिद के हुकूक कितनी सराहत से बयान किए हैं। आप एक मर्द की सूरत में जमीन पर तशरीफ लाए थे, आपने खवातीन के कितने अहकामात बताएं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि पहले खुद करो फिर दूसरे को दो, तो उसी पे इकबाल कहते हैं कि बेअमल तो थे ही कि जवां दीन से बदन भी हुए। पहले कम अज कम इतना तो था कि अगर अमल है या नहीं है, लेकिन आप दूसरे तक तो एक अच्छी बात पहुंचा दें, जिसको मैं बड़ी सख्ती से लेता हूँ अपनी जिंदगी में हमेशा से, कि अगर ये काम मैं नहीं करता तो मैं किसी ऐसे को बता दूं कि वो कर ले। तो कम अज कम क़यामत के दिन जब तांबे जैसी जमीन ने मेरे पांव पकड़े हुए होंगे, तो इस सवाल के जवाब में तो मुझे आसानी होगी ना कि तूने कितना आगे पहुंचाया। पहले दो हिस्से हैं, कहां से हासिल किया और कितने पे अमल किया। तो जब तक पहले दो हिस्सों को मैं पूरा ना करूं, मैं तीसरे पे जाऊं ही ना। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफहूम है कि मेरी उम्मत के उलमा के कलम की रोशनाई शहीदों के खून से ज्यादा कीमती है। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया का दर्जा रखेंगे। आलिम और आबिद की इबादत का फर्क बताते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि एक आम आबिद की इबादत ऐसे है जैसे खच्चर पर सामान लदा हो और वो एक खूंटे के साथ बंधा हुआ हो और उसके चारों तरफ घूमता रहे, कि मुशक्कत भी कर रहा है लेकिन कोई मंजिल, कोई रास्ता तय नहीं कर रहा। जिसकी निस्बत एक आलिम जो है वो एक छोटे से अमल से उससे कहीं ज्यादा अजर कमा लेता है। तकवे के बाद सबसे बड़ा दर्जा आलिम का हुआ, आबिद का नहीं। या तो हक ताला शाना की मोहब्बत, डर और इत्याद कि वो नाराज ना हो जाए, बुराई से बचने, सिर्फ बुराई से बचने। तकवा सिर्फ बचने का नाम है। हजरत अली से पूछा गया कि तकवा क्या है? आपने अपने लिबास को समेटा और सीधा चलने के बजाय ऐसे आहिस्ता आहिस्ता साइड पर चलने लगे कि यूं तसव्वुर करो कि जैसे तुम एक खारदार झाड़ियां हैं और उसमें से अपने इस लिबास को बचाते हुए गुजर रहे हो कि कोई कांटा ना लग जाए। तो बुराइयों में से इस तरह से निकल के गुजर जाना, जिंदगी में से इस तरह से निकल के गुजर जाना, दुनिया में से इस तरह से निकल के गुजर जाने को तकवा कहते हैं। अगर तू इस तरह से गुजरा झाड़ियों में से तो तूने तकवा किया और तू मुत्तकी हुआ। अभी नेकी का जिक्र नहीं है, कुछ करने का जिक्र नहीं है, सिर्फ बचने पर सबसे अफजल मकाम है। और दूसरा मकाम किसको दिया? आबिद को नहीं, आलिम को। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 5 बड़ों में से सबसे बड़ा आबिद, उसके बाद आलिम, उसके बाद औहदा, उसके बाद रिश्ता और उसके बाद उम्र। तो उम्मत में इस वाक़े ने जो नुकसान पैदा किया कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपनी तरफ देखो पहले, जो तुम खुद नहीं करते वो दूसरों को क्यों करने को कहते हो। इस चीज ने कुछ और किया हो या ना किया हो, कम से कम इल्म की तरसील को रोक दिया, जिस पर इकबाल ने ये कहा कि बेअमल तो थे ही कि जवान दीन से बज़्ज़न भी हुए। तो अगर आप खुदा ना खास्ता किसी एक अमल के या किसी एक फर्ज के या किसी एक अच्छाई के या किसी भी किस्म अदा करने से माजूर हैं, तो कम से कम उस मालूमात का हिस्सा किसी दूसरे तक पहुंचा दीजिए कि ये इल्म उस तक पहुंच जाए। हो सकता है वो आपकी निस्बत, मेरी निस्बत या बातूनी या बयान का गाजी ना हो, वो अमली तौर पर एक ऐसा इंसान हो कि जो फौरी तौर पर उस पर अमल करे और इसका अजर यकीनन आपको भी मिलेगा। तो ये बुजुर्गों के म्यार थे कि उन्होंने अपने लिए कुछ म्यार ऐसे रखे हुए थे। इसी तरह से डॉक्टर इसरार साहब का ये म्यार है और ये बहुत ऊंचे मकाम के लोग हैं, जहां हमें पहले वाक़े से कुछ नेगेटिव असरात भी नजर आते हैं, जहां हमें ये एहसास होता है ये वतन की मोहब्बत से शायद इनकार कर रहे हैं या उसका एहतराम करने से मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये उस शिद्दत को रद्द कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो। ला तखलुफू फी दीनकुम, अल्लाह तो दीन में भी इंतहा पे जाने से मना करता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ आप दोबारा सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि बस मेरे मुल्क का मफाद, अब जाओ अफगानिस्तान पे बम मारो लेकिन मेरे मुल्क को छोड़ दो। सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है। तो जब उम्मत बट जाती है जुग्राफियाई हुदूद में, तब ऐसी बातें होती हैं। तो उस चीज की वार्निंग इकबाल ने अपने वक्त में दे दी और उसी चीज को डॉक्टर साहब दोबारा दोहरा रहे हैं कि एक इंसान इतनी हद पे ना चला जाए। डॉक्टर साहब का ये म्यार है, काबिल ताजीम है या काबिल मुजम्मत, लेकिन किसी भी तौर पर ये हुज्जत नहीं है। जिस तरह से मैं अपने बारे में कहा करता हूँ कि मेरी किसी भी बात को रद्द करने में आपको कोई गुनाह नहीं है। एक बात को समझें, उसको मिला के देखें, अल्लाह और उसके रसूल
रसूल के अहकामात से, क्योंकि हुज्जत अल्लाह और उसके रसूल का फरमान ही है। तो अगर ये बात आपकी समझ में आती है कि ये उससे मुवासलत रखता है तो इसको अपने इल्म के साथ साथ अपने किरदार का हिस्सा भी बनाइए। वरना दीगर इसे रद्द कर दीजिए। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मौजूद है वहाँ बंदे की अताअत नहीं है, वो कोई भी क्यों ना हो। तो यहाँ सिर्फ उन अल्फाज को पकड़ के मत बैठिए, बल्कि उसके पीछे एक मफहूम को देखिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और अपनी जात की हद तक उन्होंने इसको कितना सीरियसली लिया है। लेकिन किसी को ये नहीं कहा कि आप भी ऐसा करो, ये उनका अपना म्यार है। पहले बुजुर्ग को भी मालूम था किसी चीज को, जायज चीज को आप अपने ऊपर किस तरह से हराम कर सकते हैं, जिस तरह से किसी नाजायज चीज को आप जायज करार नहीं दे सकते, इसी तरह से आप किसी जायज चीज को नाजायज करार नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद उनका शआर ऐसा था। अब ये मेरा मकाम नहीं है कि मैं उन पर तनकीद करूं, अल्लाह तबारक ताला उनके साथ उनकी नीयत के मुताबिक मामला फरमाए और एक बच्चे की तरबियत के लिए उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। बहुत बड़ी कुर्बानी है इसके पीछे। हम उस पार्ट को अपने जहन में रखें कि सिर्फ एक बच्चे को नसीहत करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया जो उन पर वाजिब भी नहीं था, उन पर फर्ज भी नहीं था। हमारा रब तो बहुत रहीम करीम है, वो कहता है बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो, छोटे छोटे गुनाह तो मैं खुद माफ कर दूंगा, और ये जो तुम लघु कसमें खाते हो मैं इन्हें भी माफ कर दूंगा, क्योंकि वो जानता है यू डोंट मीन इट। ईमान से यार बस पेट भर गया, अल्लाह की कसम और नहीं, प्लीज बाय गॉड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, नो इट वाज़न्ट मी, अल्लाह की कसम, आई स्वेयर, ईमान से तुझे मेरी कसम। ये वो लघु कसमें हैं जिससे अल्लाह आपकी बासपुर्स नहीं करेगा, क्योंकि दीन फितरत है। जिसने हमें बनाया है वो हमारी फितरत को समझता है, इसलिए हमें इस किस्म की चीजों पर बासपुर्स नहीं करेगा। लेकिन इन लोगों के म्यार दूसरे हैं भाई। वो वाकयात आपने सुना होगा कि एक बुजुर्ग ने कहा वाह क्या मौके पे बारिश हुई है, तो उनकी पकड़ हो गई कि हमने कभी बेमौका भी बारिश की है। लेकिन हम ये आमतौर पे देखते हैं क्या सत्यानाश इस हवा का, यार अभी मैं गाड़ी धुलवा के लाया हूँ, ऐसी आंधी चली है, सारा वो सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क इस मौसम। अभी फैन धुलवाया था, अभी झाड़ू दिलवाई थी, ये हवा से इतने सारे फिर पत्ते आ गए हैं, दफा ऐसा मौसम। हमें मना किया कि जमाने को बुरा मत कहो, सूरह असर की वजह से नहीं, बल्कि ये एक कुदरत का निजाम है जिसे तुम नहीं समझते, तो उस पर बिला वजह तनकीद मत करो। अगर मैं ये कहूँ कि एक शख्स दौड़ा हुआ जा रहा है, किसी बहुत इमरजेंसी में वो रास्ते में आपको टकरा जाता है और सॉरी कह के निकल जाता है, तो अगर कोई उसको पकड़ के गालियां देनी शुरू करे तो सारे लोग कहेंगे भाई वो इमरजेंसी में जा रहा था, he doesn't mean it, तुम्हें जानबूझ के उसने धक्का नहीं दिया, निकल गया। इसी तरह से ये तेज हवाएं जो हैं, जब जमीन के किसी एक हिस्से पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है शिद्दत से, तो हम ये सब जानते हैं कि वहाँ की हवा गर्म होकर वेपरेट होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह ताजा हवा लेती है। ये एक निजाम है कुदरत के इत्तेदाल का। तो जब एक इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जिस शिद्दत से होती है तो उसी शिद्दत से हवा उसकी तरफ जाती है, ताजा हवा, तो रास्ते में हमसे टकरा जाती है, रास्ते में हमारा शहर आ जाता है या हमारा गांव आ जाता है या हमारी गाड़ी आ जाती है, हमारा सहन आ जाता है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम ऐसा कहें। तो जिन चीजों को हम नहीं समझते उसके लिए हमें बिला वजह का तबसरा नहीं करना चाहिए। और इस चीज को समझें कि एक बयान होता है, एक वीडियो होती है, एक वाकया होता है, लोग उसको अपने अपने अंदाज में लेते हैं। अब ये 6 है या 9 है, इसकी गुंजाइश हमें एक दूसरे को देनी है। लेकिन कुछ लोगों की नजर सिर्फ नेगेटिव चीजों पर होती है, वो कुनूती होते हैं। जैसे मैं मिसाल दिया करता हूँ कि 2 मुजीद हैं, फितरत से नशाती है, ऑप्टिमिस्ट है, वो कहता है यार मैं जहाज बनाऊं, जहाज उड़ाऊं, परिंदों की तरह से हवाओं में उड़ूं। और पैराशूट भी तो एक मुजीद ने इजाद किया था। उसकी नजर नेगेटिविटी पर है कि जहाज में आग लग गई तो फिर। तो हमारे लिए ये दोनों लोग जो हैं, दे आर स्पाइसेस ऑफ आवर कल्चर, स्पाइसेस ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारी जिंदगी को मजेदार करते हैं ये लोग मिलकर। लेकिन अगर अक्सरियत का रुझान उस तरफ होना शुरू हो जाए, जैसा मैं देखता हूँ कि बिला वजह मीन में निकाल कर बुराई ढूंढी जा रही है और फिर उस पे लाइक्स दिए जा रहे हैं, भाई क्यों पेसिमिज्म फैला रहे हो? अल्लाह के रसूल का फरमान है जिसका मफहूम है कि अच्छाई का जिक्र अच्छाई और बुराई का जिक्र बुराई फैलाता है। तो आप लोग पॉजिटिव नजर रखें, हर बुराई को अपने तक रोक दें, ये वादा करें, ये एहसास करें कि आपके से आगे कोई बुराई नहीं जाएगी। सिर्फ इतना कर दें, किसी बच्चे को भी अगर कहा जाए ना तू बुरा है, 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 तो वो कहता है ठीक है मैं बुरा हूँ। फिर आपकी यहाँ फिल्में बनती हैं, एक गुनाह और सही। मेरे भाई का एक दोस्त था, 5 रुपए की जरूरत है, उसने कहा मैं तुझे 2 घंटे में वापस कर दूंगा। ठीक है ये ले ले, लेकिन अगर नहीं दिए ना तूने मुझे 2 घंटे में, क़यामत के दिन तेरा गिरबान पकड़ूंगा। तो वो पैसों को जेब में डालते हुए कहता है कि यार ये तन था मिले थे तू भी फाड़ नहीं। तो इंसान सुन हो जाता है। इतनी बैशिंग अच्छी नहीं है। इसी तरह से कौम को उसकी बुराइयां दिखा दिखा
के सुन कर रहे हैं। 100 अच्छे वाकयात में से एक बुरा वाकया आए तो हम सब लोग मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, यार एक छोटा सा धब्बा है इसे मिटा दें। लेकिन जब आप मेरे सामने इतना गंदा लिबास लेकर आए तो फिर मैं भी कहूंगा कि ठीक है भाई, ये बिल्डिंगों को रंग करने वालों की डांगरी समझकर इसे इस्तेमाल करूं, जिसके लिए वो एहतियात भी नहीं करता कि मजीद धब्बा पड़ जाए। अगर हाथ में रंग लग जाए तो वो उसी से पहुंच लेता है अपने लिबास से, लेकिन एक दूसरा लिबास जब वो पहनता है तो उसकी एहतियात करता है। कौमी लिबास को वर्कर की डांगरी ना बना दें प्लीज, उसका उजलापन सामने रखें, लोगों को उजलापन दिखाएं। अच्छाई का जिक्र अच्छाई फैलाएगा। वहां जब हमें कोई एक वाकया बुरा नजर आएगा तो हम सब में हिम्मत भी होगी, जुर्रत भी होगी और सबकी कोशिश भी होगी कि इसे खत्म कर दिया जाए। समझ लें आपने 1 लाख बुराइयां छुपा के सिर्फ एक बुराई सामने दिखाई थी और सबने मिलकर उसको खत्म कर दिया, तो एक कम हो गई ना। लेकिन अगर आप 1 लाख की 1 लाख मेरे सामने ले आए, कोयलों का ट्रक, तो फिर मैं भी यही कहूंगा भी काकुल की कोठरी में ला के जतन करियो, काकुल का दाग भाई लागे ही लागे। मैं इसी ख्याल से अपने पांव तोड़ बैठा हूँ। कतील के मंजिलें हैं बहुत, मुसाफतें हैं बहुत, मंजिलें दूर भी हैं, मंजिलें नजदीक भी हैं, अपने ही पांव में जंजीर पड़ी हो जाए तो प्लीज टेक इट पॉजिटिव। और इसरार साहब के उसको आप अपने लिए हुज्जत मत समझिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि हमारी नीयत झंडे को सलूट करते हुए, यहाँ तराना पढ़ते हुए हमारे जज्बात वो नहीं होते जो हम नमाज के लिए सोचते हैं। इसलिए ना तो हम उसे इतनी शिद्दत से लेते हैं और ना ही उसका ऐसा कोई मकाम है। वो वतन की ताज़ीम का एक निशान है जिस पर हमें फख्र होता है। हम फख्र से अपने झंडे को सलूट करते हैं, हम फख्र से उसके एहतराम के लिए खड़े होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदन का जनाजा देखकर खड़े हो गए। बताया गया कि जी एक यहूदन का जनाजा है, तो आपने कहा कि मैं किसी मजहब की वजह से नहीं, एहतराम इंसानियत के लिए खड़ा हुआ। तो हमें खड़ा होने में एहतराम को देखना चाहिए, ना कि उसको नमाज से मिलाने। मैं अब भी डॉक्टर इसरार साहब पर एतराज नहीं कर रहा हूँ, उन पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। स्टिल आई डू अप्रिशिएट हिज एफर्ट कि उनका वो मकाम है जहाँ वो अफोर्ड करते हैं इतनी हसासियत। हम कमजोर लोग हैं, हमारे लिए कुरान की वो आयत जहाँ अल्लाह तबारक तआला ने हमें छूट दी हुई है कि बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो, छोटे छोटे गुनाह मैं खुद माफ कर दूंगा। और हम तुम्हारी ऐसी लघु कस्मों को, तो वेयर यू डोंट मीन इट, अल्लाह फितरत समझता है ना, तो वहाँ वो हमसे बासपुर्स भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।